Hello guys, welcome back to my channel. In this video we are going to see a new chapter and the name of the chapter is Hilbert space. First we will see the definition of Hilbert space. Yes. Definition of Hilbert space. Okay. So definition is a Hilbert space is a complex Banach space. Okay. First we will write the definition. A Hilbert space is a complex Banach space. Is a complex Banach space whose norm arises from an inner product that is in which there is defined a complex function, okay, inner product of x, y, okay, of vectors x and y, okay, with the following properties. Yes. What is first property? Here first property is inner product of alpha x plus beta y with z is equals to what? Alpha inner product of xz plus beta yz. Okay. Second property is inner product of xy conjugate is equals to yx. And the third property is inner product of xx is equals to norm x square. Okay. This is the definition of Hilbert space. A Hilbert space is a complex Banach space whose norm arises from an inner product that is in which there is defined a complex function xy. इसको हम क्या बोलते हैं कि inner product of xy, okay, of vectors x and y with the following properties. There are three properties, okay. So first property is inner product of alpha x plus beta y with z is equals to alpha into inner product of xz plus beta into inner product of yz. And the next property is inner product of xy conjugate, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं conjugate is equals to क्या होगा inner product of yx होगा. Then third property is inner product of x with itself is equals to what? Norm x square. अगर ये तीनों भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो वो स्पेस क्या होगा? हमारा हिल्बर्ट स्पेस होगा. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल सी द वन एग्जांपल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एग्जांपल. ओके. So first example, this space L to N. This space L to N with the inner product of two vectors, inner product of two vectors. Here first vector is x is equals to what we can write? x1, x2 up to xn, n doubles. And y is equals to what? y1, y2 up to yn. ठीक है. Then define this inner product is defined by inner product of xy is equals to summation of xi, yi conjugate. Okay. Here I running from 1 to n. हमें क्या प्रूव करना है? दिस स्पेस L to N इज ए हिल्बर्ट स्पेस. ओके. सो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिल्बर्ट स्पेस के तीनों भी प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करने पड़ेंगे. तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हिल्बर्ट स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई विथ जेड इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड. ओके. तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रूव होती है कि नहीं होती, ये हमें चेक करना है. तो लेट्स चेक. इनर प्रोडक्ट हमें डिफाइन किया है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट एंड हियर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n. ओके. सो
हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई विथ जेड इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, देखो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो हमें हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स आई। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसका कि अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है उसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट है जेड आई कॉन्जुगेट, हियर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, जेड आई बार जो है अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि अल्फा एक्स आई जेड आई कॉन्जुगेट प्लस बीटा वाई आई जेड आई कॉन्जुगेट, राइट। देन व्हाट वी कैन राइट हियर, yes, next one, here I running from 1 to n is equals to summation। देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि समेशन सेपरेट कर सकते हैं, तो समेशन I running from 1 to n अल्फा एक्स आई जेड आई बार प्लस समेशन ऑफ I running from 1 to n बीटा वाई आई जेड आई बार। देखो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा स्केलर्स है, ये समेशन हमारा एक्स आई जेड आई पे चल रहा है, ठीक है। तो हम अल्फा एंड बीटा बाहर निकाल सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू अल्फा समेशन ऑफ एक्स आई जेड आई कॉन्जुगेट प्लस बीटा समेशन ऑफ वाई आई जेड आई कॉन्जुगेट, हियर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, अल्फा इनटू व्हाट, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड, राइट, एंड दिस इज बीटा इनटू वाई जेड, राइट। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू जेड विथ इनर प्रोडक्ट जेड, ठीक है। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि अल्फा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड प्लस बीटा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। तो अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वन, कि एक्स वाई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू व्हाट, वाई एक्स, राइट। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं हम इसको, देखो यस, तो देखो हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट, इसका भी कॉन्जुगेट, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट है, तो हियर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, हमारे पास है सेकेंड वाला, ठीक है, कि एक्स वाई कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट, इसका पूरा कॉन्जुगेट, ठीक है। हियर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एक्स आई कॉन्जुगेट एंड वाई आई डबल कॉन्जुगेट, हियर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, और इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई कॉन्जुगेट। देखो वाई आई का डबल कॉन्जुगेट है, इसका मतलब डबल कॉन्जुगेट क्या होता है, हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, तो हम लिख सकते हैं इसका वाई आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, और इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई बार इज इक्वल्स टू आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, कि वाई आई, ओके, दिस वन इज वाई एक्स, ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स, राइट। तो हमारे पास क्या मिला कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स, राइट। तो सेकेंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड वन इज, व्हाट इज थर्ड वन, कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, नॉर्म एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई कॉन्जुगेट, हियर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, राइट। तो ये हम कैसे हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड जेड बार इज इक्वल्स टू क्या होता है कि मॉड जेड स्क्वायर होता है, तो इसके इंस्टेड ऑफ दिस term we can write this summation of mod xi square, okay, here I running from 1 to n, and we know that this mod is always greater than equals to 0, और ये सारे जो टर्म्स है, ठीक है, मॉड है और इसका मॉड का स्क्वायर है, उसका समेशन है, दैट इम्प्लाइज व्हाट, दिस इज मीन्स व्हाट, दिस x1 मॉड स्क्वायर प्लस x2 मॉड स्क्वायर प्लस मॉड x3 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस मॉड xn स्क्वायर,
ठीक है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये पूरे टर्म्स कैसे है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसका पूरा समेशन भी कैसा होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। अगर हमारा इसका समेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस समेशन इज नॉर्म xi दिस स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो देखो हमारे पास ये भी है, एक मिनट, yes, that implies here x is equals to what, this is a greater than equals to 0 and this means what, this norm x square is greater than equals to 0। ओके, तो हमें ये मिला। और एक चीज है, दिस समेशन सॉरी इनर प्रोडक्ट ऑफ x is equals to 0 if and only if what, summation of xi bar is equals to 0 होगा। if and only if what, we can write this summation of mod xi square is equals to 0 and this is true if and only if summation of mod xi, और नहीं यहाँ पे summation नहीं लिखेंगे, ठीक है, xi square is equals to 0 and this is true if and only if mod xi is equals to 0 and this is true if and only if xi is equals to 0। That means what, this is true if and only if x is equals to 0। यहाँ पे हमारा x क्या है, x is equals to what, x1 x2 up to xn। ओके, और ये xi मतलब क्या है, हमारा i रनिंग फ्रॉम 1 to n है, ठीक है। तो ये हर एक i के लिए ट्रू होगा। तो हमारा ये xi इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब क्या, x1 इज इक्वल्स टू 0, x2 इज इक्वल्स टू 0 अप टू xn इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये सब 0 हो गए तो सर ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो दिस इज इम्प्लाई दैट दिस all three conditions are satisfied, therefore this L to N is a Hilbert space। ये हमने हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन देखी और एक एग्जांपल्स देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये जो थ्योरम है, और जो हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर बहुत सारे थ्योरम्स है वो भी हम देखेंगे अलग अलग वीडियो में। देखो अब हम क्या करने वाले कि जो हिल्बर्ट स्पेस जो चैप्टर है वो पूरा कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकूं और उस पर नया वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उस पर क्या करूँगी कि जो नेक्स्ट थ्योरम है स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है, वो थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ, और उसके आगे जो थ्योरम है कॉन्वेक्स सबसेट पे, तो वो भी मैं कवर करने वाली हूँ। तो अगले वीडियो में हम 2 थ्योरम्स कवर करने का ट्राई करेंगे। अगर नहीं हुआ, वीडियो लंबा हुआ, तो हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग थ्योरम प्रूव करेंगे, ठीक है।